Everyone, welcome once again to my channel. In this video I am going to do previous year questions from year 2025 and 2024. Okay, so let's start with the first problem from 2025. The question is the principal value of sine inverse sine in bracket minus 10 pi upon 3 is. It is a MCQ type question. You have to find the correct value of this. Okay, so first of all we have to convert this minus sign into plus. Okay, so for that you know the formula is sine inverse of minus x is equal to minus sine inverse x. Also, because sine is an odd function, so you can write that sine of minus x is minus sine of minus x is minus sine x. So we are going to use these two formulae. So our question, which is sine inverse sine in bracket minus 10 pi upon 3. Okay, so you can take minus sign from both the signs. So it is minus sine inverse sine in bracket 10 pi. It becomes positive. Now what you have to do, you have to find the value of this 10 pi upon 3, because 10 pi upon 3 does not lie in the principal value branch of sine inverse x. Okay, what is the principal value branch of sine inverse x? It is from the closed interval minus pi by 2 to pi by 2. Okay, and it does not belong to this interval. Why? Because you have 10 pi upon 3. So 10 pi upon 3, if you calculate this, it is 10 into 180 upon 3. Okay, so it is 60, it is 600 degree. Or what about this 600 degree, where it will lie? Okay, so just check the quadrant, just do a rough work for this. So you know that this is for 360 degree, which is 2 pi. Okay, so when you add pi 90 degree to this, so 450, it becomes 450 pi by 2. When you add this 180 degree, so it is 540. Okay, this is when you add pi to this. 540 आ गया, 540, but we want 600 हमें कैसे मिलेगा ये? when you add 60 degree more to it, है ना? जब हमें 540 में 60 डिग्री, मतलब 600 को हम कैसे लिख सकते हैं? 540 प्लस 60. ठीक है, हमें क्या करना है, जो 10 पाई अपॉन 3 है उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे लाना है. ठीक है, तब हमारा आंसर आएगा. सो यू हैव 600, यू कैन राइट दिस एज 540 प्लस 60. अब 540 हमारी वैल्यू पाई में क्या है? ये 2 पाई है, और उसमें हमने पाई ऐड कर दिया है, तो 2 पाई प्लस पाई इट इज़ 3 पाई, एंड 600 इज़ योर 10 पाई अपॉन 3. Okay, so you have, and pi 60 degree, you know it is pi by 3. So you can write 10 pi upon 3 as 3 pi plus pi by 3. अब 3 pi plus pi by 3 करेंगे, जो ये pi by 3 वैल्यू है, this lie in the principal value branch of sin inverse x. ठीक है, तो ये हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? We can write 10 pi upon 3 is same as 3 pi plus pi by 3. So you can write that you have sin inverse sin 10 pi upon 3 is same as sine inverse sine. Now because we have in place of this, change this to 3 pi plus pi by 3. अब यहाँ पर 3 pi है, so this I told you earlier, then if you have a multiple of pi here, sine will remain as sine. Just you have to check the quadrant, in which quadrant it will lie. Okay, so you have, okay, because we have minus sign in this our question, so we will take minus sign along with this. So now 3 pi is like you have all sine, tan, cos. Third quadrant is for tan and cot. So here you have sin is negative. यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है. और ये वाली जो वैल्यू है हमारी 3 पाई प्लस पाई बाई 3, ये कहाँ जा रही है? हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर हो जाएगी. तो यहाँ पर हमारा साइन की वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. ठीक है, मतलब इसका जो आंसर मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा. सो यू हैव माइनस साइन इनवर्स. ओके, सो यू विल गेट दिस इज माइनस साइन पाई बाई 3. Again, by the formula of sine inverse x, because you know that sine inverse of minus x is same as minus sine inverse x. So you can take that minus sign outside. तो ये वाला माइनस और ये बाहर भी माइनस है, that become plus. Okay, so you have sine inverse sine pi by 3. अब ये sine inverse और sine तो कैंसिल हो जाएगा, so you will only get pi by 3. Okay, so in this case the correct option is your option C. Okay, हमारा C option correct होगा. Question number 2 is a graph question, where you have, the question is the following graph is a combination of. I will show you this graph. See this. So this is the given graph from the book. So in this case your option C is correct, that y is equal to sine inverse x and y is equal to sine x. Let's see the third question, where you have sec inverse of minus root 2 minus tan inverse of 1 upon root 3 is equal to. Okay, you have to find the value of this. Now again we have minus sign in this angle. सबसे पहला काम यही होता है कि हम माइनस को पहले पॉजिटिव करें. ठीक है, so for this you should remember that sec inverse of minus x
दिस आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो दैट द फॉर्मूला फॉर दिस इज पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स. ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला ये बन जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस, सो यू हैव सेक इनवर्स ऑफ -√2, जो हमारी वैल्यू दी है वो क्या हो जाएगी, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ √2. √2 कौन सा एंगल होता है हमारा सेक का, इट इज़ π/4. 45 डिग्री पे हमें √2 मिलता है. सो इट इज़ पाई माइनस π/4. ओके, सो एक्चुअली सेक इनवर्स ऑफ -√2 इज़ 3π. इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट 3π/4. ये वैल्यू हमारी आ रही है सेक इनवर्स ऑफ -√2 के लिए. व्हाट अबाउट दिस वैल्यू, tan इनवर्स ऑफ 1/√3. सो यू हैव tan इनवर्स ऑफ 1/√3. 1/√3 हमें कब मिलता है, वी विल गेट दिस एट 30 डिग्री. तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, π/6. दोनों वैल्यूज हमें मिल गई है, यहाँ पे पुट कर देना है और सिंप्लीफाई कर देना है. Just put the values. So just take LCM of this. So it is 4 and 6. LCM is 12. Okay. तो यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9π माइनस 2π. 9π माइनस 2π क्या होता है, 7π/12. Okay. So actually we are getting this value 7π/12. Let's check the option. It is C option, 7π/12. So option C is correct. Okay, let's come to question number 4, where you have if y is equal to sin inverse x and x ranges from -1 to 0, then the range of y is, range of y बताना है, मतलब sin inverse x की रेंज बताना है. तो ये क्वेश्चन ईजी है. -1 इज लेस देन x इज लेस देन 0 है. सो मतलब एक बार x की वैल्यू 0 पुट करके चेक करना है हमें कौन सा एंगल मिल रहा है, और एक बार x की वैल्यू -1 पुट करना है और चेक करना है y की वैल्यू क्या मिल रही है. सो व्हेन यू हैव x इज इक्वल टू 0, योर y इज sin इनवर्स 0, मतलब 0 ही मिलेगा हमें. And when you have x is equal to -1, your y is sin inverse of -1. Okay, -1 means you can write this as minus sin inverse x, क्योंकि हम माइनस वो बाहर ले सकते हैं, सॉरी 1, so sin inverse 1. So sin inverse 1 is π/2, so it is minus π/2. And here you are having less than equal to, दोनों में equal to साइन है. So the range of y, that y belongs to the closed interval -π/2 to 0. So this is the range. Okay, so in this case your option B is correct, close interval -π/2 to 0. Okay, question number 5 is again from graph. It is a given graph. The given graph illustrate. So which type of graph is this? It is a sec inverse graph, cot inverse, tan inverse or cosec inverse. You have to find which one is correct. So first of all you have to check the principal value branch of this graph. Okay, so as you can see, यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ये जो लाइन है ये हमारी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, मतलब ये इस लाइन पे टच नहीं हो रही है. जो डॉटेड लाइन है उस पर ये लाइन टच नहीं हो रही है, ये ग्राफ हमारा टच नहीं कर रहा है. ठीक है, नीचे भी वही केस है, यहाँ पे जो हमारा डॉटेड लाइन है उस पर ये ग्राफ टच नहीं कर रहा है, ये ग्राफ ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, मतलब ये जो इंटरवल है -π/2 से लेके π/2, ये ओपन इंटरवल है. इस पे ये ग्राफ टच होता तो ये क्लोज बन जाता. ठीक है, पर ये टच नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है ऐसे, ये इंक्रीज हो रहा है. तो ये जो है -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल बता रहा है. तो ओपन इंटरवल हमारा किसका होता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा. ठीक है, लेट्स सी इट फ्रॉम द बुक. सो यू हैव see the principal value branch of tan inverse x. For this it is -π/2 to π/2. ओपन इंटरवल क्या है इसका, π/2 to π/2, -π/2 to π/2. तो ये किसका ग्राफ है, tan इनवर्स x का ग्राफ है. ठीक है, सो दिस ग्राफ इज फॉर tan इनवर्स x. So option C is correct. One more thing, you have to remember all the graph from your textbook. You have each and every graph is given, tan inverse given है. ठीक है, same way you have the graph of cot inverse x. तो ये पूरा ग्राफ एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं तो वो सिर्फ एक स्लाइस भी दे सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन के लिए दिया है. सो सी इन दिस क्वेश्चन यू हैव कॉट इनवर्स का ग्राफ हम देखेंगे तो ये जो हमारा ब्लू लाइन है, डार्क ब्लू लाइन, तो ये इन्होंने क्या किया है, देखो ये कहाँ से जा रहा है, 0 से लेके पाई तक, 0 से पाई के बीच में ये ग्राफ मूव कर रहा है. लेकिन ये कहाँ से है, ये यहाँ पे देखो पाई पे टच नहीं हो रहा है. ठीक है, इट इज़ नॉट टचिंग द पाई वैल्यू. और फिर ये 0 पे भी ऐसे ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये टच नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, सो इन दिस केस ऑल्सो द रेंज इज़ फ्रॉम 0 to पाई, और ये भी कैसा रेंज है, ओपन इंटरवल है. तो हमें इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सबका याद होना चाहिए. तो कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, 0 to पाई, ओपन इंटरवल 0 to पाई. तो तुम्हें ग्राफ नहीं भी पता है तो भी तुम्हें देखना है कि ये मतलब ग्राफ नहीं याद है कि किसका ग्राफ है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद होना चाहिए, ताकि हम पता कर सकें कि 0 to पाई अगर हमारा ओपन इंटरवल आ रहा है तो वो किसका है, वो कॉट इनवर्स x का ग्राफ है. ओके, लाइक दिस यू हैव टू फाइंड आउट. Okay, now question number 6 is an assertion reason type question, where the assertion is set of values of sec inverse √3/2 is a null set.
ठीक है। नल सेट मतलब उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, √3/2 वाला, ठीक है। रीज़न बोल रहे हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेक इनवर्स x इज़ डिफाइंड फॉर द इंटरवल x वेयर x बिलोंग्स टू r माइनस एंड यू हैव टू माइनस द रेंज -1 to 1, मतलब -1 to 1 के बीच में जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं उनको डिलीट कर दो, बाकी r पूरा रियल नंबर ले लो। तो ऐसी वैल्यूज़ जो होती हैं वो सेक इनवर्स x के लिए डिफाइंड होती हैं। तो ये सिंपल सा टास्क है, इसमें क्या करना है, सेक इनवर्स जो वैल्यू हमें दी है ये वैल्यू हमारी x है, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। अगर वो वैल्यू इस पे आ गई, मतलब ये डिलीटेड पार्ट में आ गई, तो ये ट्रू है, हमारा स्टेटमेंट दोनों ही ट्रू है। और अगर ये नहीं आती है इसमें तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं एक बार। सो हियर यू हैव x इज इक्वल टू √3/2। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732/2। डिवाइड कर दो उसको तो ये क्या हो जाएगा 2 8 16, 1 कैरी हुआ 2 6 12 एंड देन यू हैव 1 कैरी अगेन 2 6, मतलब ये आ रही है 0.866। सो दैट मीन्स दिस वैल्यू बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल, नहीं ओपन इंटरवल -1 to 1, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है ये इस रेंज में हमारी आ रही है, ठीक है। 0.8 जो है वो 1 से छोटा है, 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो यही तो हमसे बोला गया है कि जो सेक इनवर्स की जो वैल्यू है वो ये नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो x है, बट आवर x जो हमारा x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, r -1 to 1, ठीक है, इस रेंज में बिलोंग कर रहा है। मतलब ये वैल्यू हटा दो, यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, पर ये जो वैल्यू हमें दी है वो तो इसी में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है ये वाला हमारा नल सेट है, ऐसी कोई वैल्यू हमें नहीं मिलने वाली है। तो दोनों ही ट्रू है, ओके। सो योर असर्शन इज़ ट्रू and reason is also true and it is the correct explanation. So you have this option that both A and R are true and R is the correct explanation of A. I hope this is clear. Okay, let's move on to question number 7 where you have the principal value of cot inverse of -1/√3 is, okay. नाउ अगेन यू हैव कॉट इनवर्स ऑफ माइनस। क्वेश्चन ज़्यादातर माइनस वाला ही आता है क्योंकि माइनस में ही हमारा दो फॉर्मूला यूज़ होगा, एक तो माइनस को कन्वर्ट करना है और दूसरा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चेक करनी है, ठीक है। तो कॉट के लिए क्या फॉर्मूला होता है ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डाल रखा है, प्लीज़ गो एंड चेक देयर। सो यू हैव दिस, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो तुम्हें कॉट इनवर्स ऑफ -x का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो दैट इज़ पाई माइनस कॉट इनवर्स x। इसको पॉजिटिव करने का क्या तरीका है, वी हैव दिस फॉर्मूला लाइक वी डिड फॉर सेक इनवर्स ऑफ -x, बिल्कुल वैसे ही कॉट इनवर्स ऑफ -x है, विच इज़ इक्वल टू पाई, मतलब कॉस के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए एक ही जैसा फॉर्मूला होता है। कॉट इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3 है वो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, ठीक है। तो अब हमारा जो ये आंसर है ये हमारा क्या बन जाएगा, पाई माइनस, अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होता है हमारा कॉट इनवर्स ऑफ 1/√3, मतलब √3 हमें किससे मिलता है, ये मिलेगा हमें 60 डिग्री पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई/3। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने 3 एलसीएम लिया, सो यू विल गेट 3 पाई माइनस पाई। 3 पाई माइनस पाई की वैल्यू क्या आएगी, सो यू हैव 2 पाई/3, ओके। सो इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन इज डी। D is the answer. Okay, let's see question number 8, which is again a graph question. The graph of a trigonometric function is as shown. Which of the following will represent the graph of its inverse? So the graph of a function is given. ये कोई trigonometric function है जिसका ग्राफ given है और ये -π/2 to π/2 से पास हो रहा है, ओके। इसका हमें ग्राफ दिया हुआ है इनवर्स फंक्शन का, तो हमें ऑप्शन में से चूज़ करना है कि विच वन इज़ करेक्ट। Okay, so in options you have these graphs where the first graph passes through π/2, ठीक है, π/2 से पास हो रहा है, पर ये जो एक्सिस है, मतलब जो पाई वाली लाइन है और 0 को उसको टच नहीं कर रहा, 0 to पाई से ये पास होके मतलब इससे जा रहा है, उसके बीच में क्रॉस कर रहा है। सेकंड बी में अगेन यू हैव द ग्राफ इज़ फ्रॉम -π/2 to π/2, ये π/2 to π/2 के बीच में ग्राफ बन रहा है। सी वाला भी ऐसे ही है, π/2 to -π/2, पर इसका ग्राफ जो है वो टर्न हो गया, ये ऐसे शेप है इसका इस तरह से शेप है, ठीक है। D इज़ फ्रॉम अगेन 0 to पाई, बट ये पाई को भी टच कर रहा है और 1 को भी टच कर रहा है, सो वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज़ द करेक्ट। ओके, लेट्स सी द ग्राफ अगेन। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा ग्राफ है ये π/2 और -π/2 से पास हो रहा है, ठीक है। अब जब ये π/2 पे जा रहा है तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू 0 बन जा रही है, जब वो -π/2 पे जा रहा है तो भी उसकी वैल्यू 0 बन जा रही है। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसमें से किसकी वैल्यू π/2 और -π/2 पे 0 बनती है। सो यू हैव दैट इनवर्स इज दैट फंक्शन इज cos x, ठीक है। अगर cos x की वैल्यू हम देखें तो हमारा cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। सेम वे cos -90 क्या होता है, वो भी 0 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ग्राफ ढूंढ के निकालना था कि ये किसका ग्राफ है, ये मिल गया। तो इसका जो हमारा इन्वर्स होगा वो क्या होगा, वो अब हमें कैसे पता चलेगा, तो वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर दैट।
know the cos inverse x, the principal value branch of cos inverse x is from the closed interval 0 to pi. मतलब 0 से पाई की लाइन जो है वहाँ पे जो ग्राफ है हमारा वो आना चाहिए और 0 टू पाई पे टच होना चाहिए, ठीक है। तो 0 टू पाई हमारा कौन कौन से ग्राफ है, 0 टू पाई हमें ये ग्राफ दिख रहा है, ये तो नहीं है हमारा, तो ये तो वैसे ही हट गया ऑप्शन से। दिस ग्राफ इज़ नॉट देयर, ये भी हट गया, ये भी ग्राफ है 0 टू पाई, ठीक है। बट इन दोनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ है जो पूरा टच कर रहा है पाई पे भी और जीरो लाइन पे भी, ठीक है, जीरो वाली एक्सेस पे भी, तो ये है तुम्हारा डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन बता रहा है हमें कि ये देखो यहाँ पे 0 पे वैल्यू इसको 1 मिल रही है और यहाँ पे पाई पे इसको आंसर -1 मिल रहा है, तो मतलब ये पूरा 0 टू पाई तक जा रहा है, क्लोज इंटरवल बना रहा है। तो ये जो हमारा ग्राफ है दिस इज़ फॉर कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि जो इसकी प्रिंसिपल रेंज आ रही है दैट इज़ फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। सो दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, let's see question number 1 from 2 marks questions. So this is from the year 2025. Okay, so the first one is simplify sine inverse under x upon under root of 1 plus x square. So this type of question we have did in the exercises. What you have to do, you have to put x something so that you get some formula or it get cancel, so that यहाँ पर बाहर क्या है, साइन इन्वर्स है, तो अंदर भी हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए, ताकि ये वाला साइन इन्वर्स और साइन कैंसिल हो जाए और हमारा आंसर आ जाए। सो लेट्स सी दिस। सो यू कैन पुट let x is equal to tan theta. ओके, सो व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू tan थीटा तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, नीचे तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बाई आइडेंटिटी दिस टर्म इज sec स्क्वायर थीटा, करेक्ट। सो दैट मीन्स यू हैव साइन इनवर्स in bracket x upon under root of 1 plus x square. This is sin inverse x, x is tan theta upon under root of sec square theta. Okay, so you can take that sec square theta outside the under root, so it become sec theta, ठीक है। अब tan theta और sec theta कैंसिल होके हमें क्या मिलेगा, so you will get this is sin theta upon cos theta and sec theta is 1 upon cos theta. So cos theta get cancelled, so you have sin inverse in bracket sin theta. Okay, so the only thing left is theta, but हमने थीटा क्या ले रखा है, x is equal to tan theta, so from here theta is tan inverse x, so the answer is tan inverse x. This is your answer. Okay, let's see the next question. Okay, the next question is evaluate tan inverse in bracket you have 2 sine, then in bracket 2 cos inverse root 3 by 2. Now in this case you have to evaluate, you have to find the values. So first of all you have to find the value of cos inverse root 3 upon 2. Okay, so once you get this you have to put the value, simplify these two, then you have to find the value of sine of that angle. Okay, again find the value of sine and then simplify with this, then you have to find the value of tan inverse. So let's do this. So this is tan inverse 2 sine, in bracket you have 2 cos inverse root 3 upon 2. So you have this is tan inverse in bracket 2 sine in bracket 2. Now what about this cos inverse root 3 upon 2? So root 3 upon 2 in cos is 30 degree. Okay, 30 degree is pi upon 6. So when you put this it is pi upon 6. Cancel these two, so it is pi upon 3. So you have tan inverse 2 sine pi upon 3. Sin pi upon 3 is sin 60 degree. Okay, so sin 60 degree is, so you can write this as tan inverse 2. Now sin 60 degree की वैल्यू क्या होती है, again root 3 upon 2. So you have this, so this is equal to tan inverse, again 2 get cancel, so you have root 3. अब root 3 की वैल्यू कब मिलती है, when you have 60 degree. 60 degree is pi upon 3. So this is our answer. Okay. Okay, let's see one question from the previous year 2024. Assertion is given, domain of y is equal to cos inverse x is -1 to 1, and reason is the range of the principal value branch of y which is equal to cos inverse x is from close interval 0 to pi minus pi by 2. Okay, so for this you have to remember the range and the principal value branch and the domain of cos inverse x. Now cos inverse x और sin inverse x का तो हमें पता है, it is from the close interval -1 to 1. domain is the same, मतलब assertion तो हमारा true है. What about the principal value branch? principal value branch भी हमें पता है, cos inverse x की क्या होती है, 0 to pi. Okay, so you have to remember this table. Okay, always follow this table when it is asked for principal value branch, that this is false, reason is false. So from these option the correct one is assertion is true but the reason is false, so A option is correct. Okay,
Okay, let's see one 2-mark question from the year 2024. So the question is, find the value of tan inverse in bracket minus 1 upon root 3 plus cot inverse in bracket 1 upon root 3 plus tan inverse in bracket sine then in bracket minus pi by 2. तो सबसे पहला काम होगा कि माइनस साइन को हम पहले प्लस करें, माइनस साइन को हमें रिमूव करना है. ओके, सो फॉर दैट यू हैव द फॉर्मूला लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. इट इज़ फॉर tan you have tan inverse of minus x is same as minus tan inverse x. Okay, and for because sine is an odd function, so sine of minus x is same as minus sine x. तो फर्स्ट वाले टर्म के लिए हमें ये यूज़ करना है, माइनस साइन को बाहर लेना है. लास्ट में जो साइन माइनस पाई बाई 2 है वहाँ से भी हमें माइनस बाहर लेना है. सो यू हैव दिस बिकम्स माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 प्लस दिस इज सेम cot इनवर्स 1 upon root 3 plus now here you have this minus sign will come out because sin is an odd function. जब ये माइनस इधर बाहर आएगा तो अगेन बिकॉज tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ tan, तो इसलिए वो साइन भी बाहर आ जाएगा. तो ये बन जाएगा tan इनवर्स साइन इन ब्रैकेट यू हैव दिस इज पाई बाई 2. नाउ tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 हमें मिलता है 30 डिग्री पर. ओके, सो tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 दैट मीन्स यू हैव पाई बाई 6. नाउ फॉर cot इनवर्स 1 अपॉन रूट 3, so in case of cot you will get 1 upon root 3 at 30 degree. 30 degree is pi upon 3 minus what about this is nothing but tan inverse. So you have sin pi by 2. sin pi by 2 की वैल्यू क्या होती है 1. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 एंड माइनस पाई बाई 4. टेक LCM of all these terms. So you have 12, it is minus 2 pi plus 4 pi minus 3 pi. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा माइनस 5 पाई देन यू हैव प्लस 4 पाई अपॉन 12. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज माइनस पाई अपॉन 12. दिस इज योर आंसर. तो सबसे पहला काम होगा माइनस साइन को हमें बाहर लेना है. Okay, let's take one more question from 2024. It is a 2-mark question. So where you have find the value of k if you have sine inverse in bracket k tan in bracket 2 cos inverse root 3 upon 2 is equal to pi upon 3. ये टर्म हमें इक्वल दिया हुआ है, हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सो यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस. तो ये साइन को हम इधर लेकर के आएंगे तो साइन इनवर्स इधर आके साइन हो जाएगा. सो इट इज़ k tan in bracket 2 cos inverse root 3 upon 2 दिस इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन 3. ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज यू हैव k tan 2 व्हाट अबाउट दिस cos इनवर्स रूट 3 अपॉन 2, इट इज़ 30 डिग्री पे हमें ये मिलता है. तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है पाई अपॉन 6. नाउ साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 इज 60 डिग्री. तो 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साइन की रूट 3 बाई 2. सो दैट मीन्स यू हैव, ये कैंसिल होगा, 2 1 2 2 3 6. तो यहाँ पे हमें मिलेगा k tan पाई बाई 3 इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2. अब tan पाई बाई 3, tan पाई बाई 3 मतलब इट इज़ 60 डिग्री. तो tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, इट इज़ रूट 3 which is equal to root 3 upon 2. So root 3 get cancelled. So you have the value of k which is equal to half. तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, half, and this is the answer. Okay, so let's move on to the next question. Okay, let's see one more question. It's a 2-mark question. Question is very interesting. We have to evaluate the term sec square tan inverse of half plus cosec square cot inverse of half. ठीक है, यहाँ पे हमें इसे evaluate करना है. So for this you should remember the identity. What is sec square and cosec square in terms of tan and cot. Okay, so let's see this. So you have this is one identity that we are going to use, and the second one is for cot. 1 plus cot square theta is cosec square theta. Okay, this one is the second one. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सेक स्क्वायर को रिप्लेस करना है विद दिस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, एंड कोसेक को हमें रिप्लेस करना है विद दिस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. थीटाज हमारे जो हैं ये हमारे एंगल, ये पूरा जो हमारा ब्रैकेट पार्ट दिया हुआ है ये हमारे थीटाज हैं. ठीक है, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो यू हैव सेक स्क्वायर in bracket tan inverse of half plus cosec square in bracket cot inverse of 1 upon 3. तो हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है. तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर इन ब्रैकेट tan ऑफ हाफ, tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस देन अगेन cosec को चेंज करना है. तो इट इज़ 1 प्लस cot, then you have cot square in bracket this angle. So you have cot inverse of 1 upon 3.
ठीक है. So this is actually equal to, so when you have square term, this is for the whole square, so it is like tan in bracket tan inverse half, okay, the whole square. Here you can put the whole square plus 1 plus, again for this you can write cot in bracket cot inverse 1 upon 3 the whole square. So this will give you 1 plus, अब ये tan और tan inverse cancel हो सकता है, so you will get this is the square term, so it is half square. Okay, for this you will get this one plus, then you have 1 plus, again here you have cot and cot inverse, so it get cancelled, and because of this square you will get it is 1 upon 3 the whole square. Okay, so the terms are, it is actually 1 plus 1 upon 4 plus 1 plus 1 upon 9. Okay, so in this case you will get, so when you simplify this it is 5 by 4 from the first bracket, and it is 9 plus 1, it is 10 upon 9 from the second bracket. Again you have to take the LCM of this, so 4 9s are 36, so LCM is 36. Okay, and when you add it is यहाँ पे कितना बचेगा, 45, 9 बचेगा, and here you will get 4, so it is 40. Okay, 45 plus 40, so it is 85 upon 36. So this is your answer. Okay, so these two were the different question. ठीक है, जो अभी हमने किया k वाला ये भी different था, and this one is where you have to use this kind of identity and then you have to take the square term outside. Square हमें बाहर लेना है और फिर tan inverse को cancel करना है, and then you have to simplify. Okay, let's see one last question from the year 2024. It's again a 2 marks question. So here you have to find the value of this. You have to find the value in the principal value branch. Find the principal value of this, tan inverse of 1 plus cos inverse of minus half plus sin inverse of minus half. Okay, so here you have minus sign with cos inverse and sin inverse. तो सबसे पहले तो formula याद होना चाहिए. So let's see that formula. So you have cos inverse of minus half. You can write this as pi minus cos inverse of x. So this is the first formula that you have to use for cos inverse of minus x. For sin inverse of minus x it is equal to minus of sin inverse of x. तो sin inverse के लिए हमें ये यूज़ करना है. ओके, तो यहाँ पे हमारा टर्म क्या बन जाएगा जो हमें गिवन है. सो दिस इम्प्लाइज यू हैव tan इनवर्स ऑफ 1, ठीक है, प्लस अब ये जो तुम्हारा टर्म है cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, तो इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, यू हैव टू राइट पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ हाफ. देन यू हैव दिस टर्म, इसके लिए हमें साइन को माइनस साइन को बाहर ले लेना है. सो यू हैव माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन √2. ओके, सो यू हैव दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, इट इज़ पाई बाई 4. 45 डिग्री पे हमें 1 की वैल्यू मिलती है. सो एंड फॉर दिस हाफ, हाफ हमें कब मिलता है, जब 60 डिग्री होता है, मतलब इट इज़ पाई बाई 3. सेम वे फॉर साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन √2. 1 अपॉन √2 कब मिलता है, जब पाई बाई 4 होता है. ये आ गया. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट कैंसिल द टर्म. ये प्लस है, ये माइनस है, सो दिस गेट कैंसिल. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम आएगा 3. सो इट इज़ 3 पाई माइनस पाई, सो यू हैव इट इज़ 2 पाई अपॉन 3. ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर. क्वेश्चन बहुत ईजी था, सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए.